आपका टाइमर हो गया स्टार्ट और ये आपका पहला केस है। Where I am provided with the X-ray hand frontal projection in MRI images in the axial and coronal plane, T1 weighted images. Ma'am, on X-ray hand, uh, I appreciate soft tissue swelling, predominantly along the palmar aspect of the right palmar aspect of the thumb. Also, there is soft tissue swelling along the fifth finger, the little finger. On MRI, the visualized bones appear normal, and there is a soft tissue swelling which is also redemonstrated on the MRI along the palmar aspect or the medial aspect of the thumb, which is isointense to the muscle, and also this causes the scalloping of the underlying cortex. Although there is no changes in the bone marrow intensity. So summing up my findings, it is it could be a GCT of the tendon. My other differential diagnoses are leukemia or myxoma. To confirm my diagnosis, I will refer this patient for histopathology. ठीक हो गया। और कुछ करवाना Okay. चाहते हैं? मैम, और कुछ? ठीक है, हिस्टोपैथ आपने बता दिया ना। और कोई यस डिफरेंशियल मैम। देना चाहते मैम, मैक्सोमा है और देयर इज नो प्लेबोलेट्स आर सो द वास्कुलर ओरिजिन ट्यूमर्स हैं? वो डिफरेंशियल में आर देंगे। आउट ऑफ द दिस. हमारे पास एमआरआई आ गया तो हम बहुत ज्यादा रेलेवेंट जो हैं वही डिफरेंशियल्स बताएंगे। ठीक है। ओके मैम. अभी नेक्स्ट आ ओके. गया। I am provided with the frontal radiograph of the right hip joint, in which I appreciate increased sclerosis of the femoral head, which is also involving the acetabular cup. There is joint space loss and the hip joint space loss, uh, almost ankylose, and the ankylosis of the medial aspect of the joint. There is also peachy subchondral lucencies in the femoral head, and increase bone density along the medial aspect of the femur. The visualized iliac bone and the pubic rami appear normal. So summing up my findings, although it is the unusual site for the Paget disease, but my differential diagnosis will include Paget disease and also AVN, but there is no subchondral lucency. Although I appreciate the cyst, but the crescenting shape of the lucency is not appreciated. So second differential diagnosis कोई हिस्ट्री लेना will चाहते be हैं the. डॉक्टर साहब? जी मैम. कोई हिस्ट्री लेना चाहते हैं आप? Yes, ma'am. Is there any history of steroid
use? No. Okay, ma'am. Is there any history of trauma, ma'am? No. Okay, ma'am. पेशेंट 20 साल से ना कोई मेडिसिन ले रही है, कोई Okay, क्रॉनिक ma'am. इशू चल रहा है। Is, ma'am, any history of connective tissue disease like rheumatoid arthritis or यस, something? यस। Okay, ma'am. So, based on the history and imaging findings, uh, it is also the initial stage of protrusio acetobuli, which is also a feature of or manifestation of rheumatoid arthritis. So, my differential diagnosis will also include the rheumatoid arthritis. तो सिर्फ रूमेटाइड आर्थराइटिस है कि उसके साथ भी कोई और चीज है? Rheumatoid arthritis with the avian. नहीं ना, एवीएन नहीं। एवीएन क्यों कह रहे हो आप बार बार, इतना अच्छा बता रहे हो? एवीएन नहीं ना, उसमें कोई फ्लैटनिंग नजर आ रही है Okay, आपको? ma'am. Rheumatoid arthritis with the simultaneous or concurrent osteoarthritis. ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए अपना। Okay, ma'am. I am provided with the frontal radiograph of the knee joint, in which I appreciate multiple areas of increased densities with the different shapes. I mean pleomorphic shapes. The giant space appear normal. There is no soft tissue swelling. There is no periosteal reaction. There is no sign of effusion. So, summing up my findings, this is a benign condition, osteopylosis, multiple wounds island. So, took क्या क्या is एसोसिएशंस the होती हैं इसकी? yes, ma'am. क्या क्या एसोसिएशंस होती हैं इनकी? आपने बोला ना Osteopylosis. osteoporosis। Yes, ma'am. So, इसके एसोसिएशन में ठीक कोई है, अभी क्या टर्क करेंगे? मैम इसको हम ऑब्जर्व करेंगे एज there is no clinical manifestation of this disease. It is usually an incidental finding. तो बायोप्सी नहीं कर लेनी चाहिए हमें, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई क्या है, असल में यही है कि नहीं? Ma'am, biopsy, no, ma'am, is it is benign looking with no clinical manifestation, so there is no need to go for biopsy. We will वेरी observe it. वेरी गुड। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ समझ में आ रहे हैं? बूनी आइसलैंड मैम है, तो इसके साथ कोई डिफरेंशियल एज तो स्क्लेरोटिक मेट्स तो इस तरह नहीं हो सकते मैम। और बाकी डिफरेंशियल भी अगर सुपर इम्पोज्ड मस्कुलर मसल्स में अगर कोई कैल्सिफिकेशन हो और वो बून पे प्रोजेक्ट हो जाए तो वो हो सकते हैं मैम एक डीडी। ठीक होगा। ठीक है डॉक्टर ओके साहब, मैम। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट कैंडिडेट का बाय बाय होगा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट, कैंडिडेट नंबर 8। कैंडिडेट 8 हैं। 9 ने कल वाइवा दे दिया था। कैंडिडेट 10, 11, 12। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो एक डॉक्टर साहिबा थी और एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा था कि वो देना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा था कि स्किप हो गया तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप में से कोई आना चाहते हैं तो प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मैम? वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है।
जी मैम, मैंने मैसेज किया था। जी ठीक हो गया। आपका 1 मिनट में टाइमर स्टार्ट करूँ, फिर हम करते हैं, जी मैम। ठीक है? ओके मैम। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, I'm presented with a coronal images of MRI wrist. I'm presented with PD and T1 imaging sequences. I can see a diffuse. सॉरी 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 जी मैम। सॉरी, ये टाइम आपको Okay, मिल जाएगा। जी मैम। Okay, madam, I'm MRI coronal images, PD and T1 imaging sequences. There is diffuse PD bright signal abnormality noted in the scaphoid bone with a T1 low fracture noted at the waist of scaphoid bone. The scapholonate interval appears to be intact. The rest of the carpal bones are intact. The carpal rows are normal. The visualized muscles show no signal abnormality. I cannot appreciate any radial styloid fracture. Uh, there is some signal abnormality noted in the radial along the ligament lateral to the radius. So my findings are representing avascular necrosis of scaphoid bone, likely secondary due to scaphoid waist fracture. These are findings that are to be communicated to the orthopedic surgeon, as these can lead to scapholonate advanced collapse with significant morbidity. If there is no history of trauma or if there is no fracture, then what do you call this disease? Uh, Avascular necrosis of scaphoid Frazier disease. Yeah, Frazier disease. Yes. Good. उसमें proximal जो फ्रेगमेंट है वो क्यों इन्वॉल्व होता, डिस्टल क्यों नहीं Uh, होता? उसकी मैम जो vascular supply है, that is from can you repeat the question again, ma'am? इसका जो proximal pole है स्केफॉइड का, why that is necrosed, why not distal Yes, one? yes, ma'am. Because the vascular supply of the scaphoid bone is from the distal end towards the proximal end. So when the fracture waist पे अकर होता है, तो the distal vessels are interrupted और उसकी वजह से blood circulation नहीं होती, and that is the reason of the कौन सी AVN. आर्टरी से connect होती है? इसको सप्लाई जो करती है मैडम, इसको डीप पाल्मर आर्च सप्लाई होता है मैम, रेडियल आर्टरी। That is a सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन मैम। that is a branch of। रेडियल आर्टरी ब्रांच होता है मैम। ये आपका नेक्स्ट केस है। सॉरी, ये इसका एक और एक्सियल सेक्शन था, वो आपने वैसे ही कंक्लूड कर दिया, तो ये नेक्स्ट है। ओके मैम। Okay, I'm presented with a CT scan image of pelvis bone window. I can see diffuse sclerosis noted along the iliac side of the sacroiliac joint. There is no joint destruction, ankylosis, or joint space widening noted. Rest of the soft tissues visualized are shown abnormality. The L5S1 joint space appear to be normal. This is a case of uh, 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 this is not sacroiliitis. This is a benign thing. Uh, Osteopathia. I forgot the name, madam. It's okay, it's totally fine. You can Yes, ma'am. take This your is a time. yes. This is a osteopathia, meloriostosis. This is meloriostosis, madam. डॉक्टर साहब, आपने Yes. फाइंडिंग्स बहुत अच्छी बताई हैं। आपके माइंड में जो चल रहा है डायग्नोसिस, मुझे वो भी समझ आ गई है, लेकिन आप नाम नहीं ठीक ले रहे। Madam, कंडेंस osteo. मिल्क से कुछ याद आ रहा है? Sorry, madam, I didn't hear you. दोबारा बता सकते हैं? कंडेंस्ड मिल्क से कुछ याद आ रहा है? Condensed milk, madam. Yes, osteo condensi li, osteoitis condensi li.
यस, वेरी गुड। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसकी जो है वो क्या वजह होती है? व्हाट इज एटियोलॉजी? Madam, it is a benign condition, likely due to this stress. Ma'am, I don't know the etiology, to be honest. Sorry. दैट इज ड्यू टू, ओके, आई विल आंसर Yeah. दैट लेटर। और Yes, ma'am. कौन से लोग जो होते हैं, विच पॉपुलेशन इज मोर प्रोन टू दिस बिनाइन एंटिटी? Mostly female gender, older age. नो, नॉट ओल्डर एज, Right. young female patients. Okay, Yes, ma'am. Okay. okay, this is your next case. Okay, I'm presented with oblique views of right hand. There is a large, predominantly mixed lytic sclerotic lesion involving the thumb metacarpal. The outline of the okay, there is some internal chondroid matrix noted within this lesion. Significant surrounding soft tissue swelling is also noted. The rest of the bones appear to be expanded with cortical thinning as well. I cannot see any arthritic changes noted in the rest of the bones. Uh, Okay, there is some degenerative changes noted in the thumb distal interphalangeal joint. Based on these imaging findings, if this is an old patient, the lesion, my definition would include a chondrosarcoma. However, the diffuse distribution of disease process, I'm also thinking of some metabolic disease process such as rickets. And What is the age of the patient? Well, this is a young patient because the epiphysis has not fused. Then narrow down your differentials, please. Okay, if this is a young patient, this kind of lesion can be this can be an enchondroma, or Can you? this could be a Ewing sarcoma. This lesion, I think this is a malignant lesion. This is not benign. Okay, so what's your differential? My differential would include an Ewing sarcoma. Other differential could include a metastatic lesion, which is less likely for this age group. And जी मैम Sorry, connectivity issue आ गया था। Okay, I was asking कि differential diagnosis narrow down करें। मैंने आपको कुछ भी नहीं सुना because मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा मैम, this is a young patient. I think this lesion is a malignant lesion. It is not benign. And malignant lesion, this could be a primary. And where do you fit the rest of the findings you mentioned earlier? That is cortical thinning and reduced bone density, etc. So I think these findings could be because of an underlying metabolic disorder such as rickets. Because there is expansion of all the bones with there is Can some you cupping find noted. any tumor in rickets? Is there any tumor related to rickets? No, ma'am. No. So relate all the findings together, okay? Yes, ma'am. So now give your different. Doctor, sir, you are doing excellent and you are on the right track. So just narrow down the differential diagnosis and done. तो हिस्ट्री ले ले मेरे से। अंडरलाइन बाकी बोन्स में कोई एब्नॉर्मैलिटी से मतलब है या सारी बोन्स इन्वॉल्व हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है लेकिन बहुत कम है। हेलो हेलो अच्छा एक मिनट में थोड़ा सा अभी लाउड बोलें प्लीज। जी मैम, अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। जी मैम, I would like to have radiographs of
the opposite hand as well and the knees अगर available है, similar findings उन bones में है या नहीं है? This would be Yes, my similar findings हैं except the tumor. except the tumor. So this is some metabolic disease that is causing malignant transformation. Mm, You have already said that. yes, Just ma'am. give me I'm the definition. Okay, now your time is up. okay. Okay. Move to next candidate. Thank you so much. Thank you, ma'am. Candidate 8 आए हैं. Candidate 10, 11, 12, 13. 13 तो I think नहीं थे. इसके अलावा कोई और अटेम्प्ट करना चाहता है? मैं कंटिन्यू करूं कैंडिडेट 2. अच्छा, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको जी नहीं, मुझे तो नंबर असाइन नहीं हुआ था, पर आप ठीक है, पूछ रही हैं इसलिए मुझे जी जी बिल्कुल ठीक Can you है. please sit ओके, there? आपको मैं टाइमर स्टार्ट कर ली. Go to Baba. Assalamualaikum, ma'am. I am a candidate number 12. ओके, कैंडिडेट नंबर 12 यू आर लेट. आपका फिर इंशाल्लाह कल है ना, कल आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा. ma'am. अभी ये जो से आई थी ना, इनको अटेम्प्ट करने देते हैं, ठीक है? Okay. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. I'm provided with X-ray of the knee joint, frontal projection and lateral projection of a skeletally mature patient, in which I can appreciate there is on the lateral radiograph there is a sclerotic, lytic sclerotic lesion with with narrow zone of transition in the proximal femur. There is mild scalping of the bone also. अच्छा, scalloping भी है, पर I cannot appreciate any soft tissue component along the bones. अच्छा, एक और लीजन भी है. I can also appreciate अच्छा, ये मेरे ख्याल में 2 लीजन्स हैं. The distal femur also shows another lytic lesion in the medullary cavity, which has internal septations also. Okay, there are I can see these findings on the lateral radiograph. और anterior पे भी नजर आ रही हैं, पर थोड़ी ज़्यादा prominent नहीं है, पर more prominent on the lateral radiograph. The lucent lesion is mildly expansile, but the fat pad anteriorly are elevated, and the sclerotic lesion in the tibia is looks benign, and this lytic lesion also has Give your narrow zone of for tibial lesion, okay. please. Okay, for which lesion? For the tibial lesion. For the tibial Yeah. lesion, this can be an enchondroma, and for the femoral lesion, this can be mildly expansile benign lesion. But there is elevation of fat pad भी elevated हैं, तो Ma'am, both entities are same. So you give differentials for both the same, okay? ओके. तो मल्टीपल लीजन्स हैं, दोनों बोन्स में हैं, तो दीज कैन बी मेडुलरी इन्फार्क्ट्स, दीज कैन बी मेडुलरी इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकते हैं. जी, फर्दर हम एमआर कराएंगे और हिस्ट्री को रिलेशन कराएंगे पेशेंट के साथ. अगर पेशेंट एनसेड्स वगैरह पे है तो मे बी दीज आर इन्फार्क्ट्स, और अगर पेशेंट को एक्यूट फीवर है और सेप्सिस है तो दीज
can be infective etiologies because the fat pads are elevated, and I am also suspecting septic Patient is taking steroids. arthritis also. Sorry, patient is Taking steroids. taking steroids. Okay, then these are most probably medullary infarcts. Next क्या कराएंगे? Next, we will proceed with the history of the patient and compare with previous studies if they are done, and MR. MRI पे क्या नजर आएंगे? MRI पे हमें जो इन्फार्क्ट्स हैं वो serpentine लॉन्ग serpentine lesions की तरह नजर आएंगे. T2 डबल डेंसिटी साइन होती है, डबल लाइन साइन T2 पे नजर आएगा हमें serpentine. Okay, this is my next case. This is the same patient or it's the next case? This is Okay, next this is case. case 8. Okay. I'm provided with multiple MR images of the tibia. The first one is T1 weighted image. Second one is T1 post contrast, and third is T2 weighted image. Has third one as शायद T2 weighted image है. I can appreciate a T1 hypo intense, T2 hyper intense lesion which is showing enhancement, and altered signals are also visible medially along the in the soft tissues. It's okay. On the axial sections, I can appreciate there is a draining sinus anteriorly, which is communicating with the fluid in the anterior compartment. In the anterior compartment and the soft tissue and the muscles. So, summarizing my findings, this is a case of osteomyelitis with draining sinus and fluid and abscess collection in the anterior thigh. Further, I would proceed with क्या उसको कहते हैं orthopedics को कॉल करूंगी and put the patient on IV antibiotics and debridement. Osteomyelitis जो है वो देखिए ना थोड़ा सा और भी मतलब धन मचाएगा ना आसपास. सॉफ्ट टिश्यूज इतने तो बुरे नहीं लग रहे, ठीक है. और आपने जो है वो एक साइनस बना दिया, लेकिन आपको कहीं कॉर्टिकल ब्रीच नजर आ रहा है जहां से आपने उसको बाहर ड्रेन करवाया हो. Yes, ये जो सेकेंड वाली इमेज है इसमें जो कॉर्टेक्स है वो डिसकंटिन्यू हुई है, जो ब्लैक लाइन है, और एक साइनस की तरह जो एक हाइपर डेंसिटी मुझे नजर आ रही है जो कि एंटीरियर को कम्युनिकेट कर रही है. जी, ऑन द इमेज E. There is no sinus formation. Okay, There is this no is not history of sinus. fever. This is the 15 years old boy. 15 years old boy में तो फिर LCH, it can be LCH और LCH यूज़ोफिल ग्रैनुलोमा हो सकता है ये फिर, अगर 15 years old boy है. और उसके अलावा यूज़ोफिल ग्रैनुलोमा और ईविंग्स सार्कोमा, और पर इतना तो ये तो इतना बुरा नहीं है इसका फिर. ईविंग सार्कोमा तो ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मास होता है उसके साथ एसोसिएटेड. और कुछ स्क्लेरोटिक आपको इसमें T2 डार्क स्क्लेरोसिस, एरियाज ऑफ स्क्लेरोसिस नजर आ रहे हैं. एरियाज ऑफ स्क्लेरोसिस तो मीडियली तो मुझे लग रहा है कि ये इसका कॉर्टेक्स है और जो फिब्युला का साइड है, और जो ये मीडियल साइड है यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हो रहा है. ओके. I'm provided with multiple bone window sections of brain of the calvarium, in which I can appreciate a focal cortical defect on the right side, right temporal region, the greater wing of sphenoid के पास.
um, but the margins are smooth, and there is soft tissue thickening also. On the second image, I can appreciate a lytic lesion anteriorly on the left side, the frontal bone, or the Ma'am, bone. look at the bones, generally, like comment on the bones in a generalized way. There is no focal lesion. Okay, there is no focal lesion. How's All the the bones pattern? are What all is the the bones are all the bones are expanded. Anteriorly ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं पोस्टीरियर के कंपैरिजन में, एंड lytic sclerotic areas है. This can be any metabolic disease, likely hyperparathyroidism or pseudo hyperparathyroidism or hypothyroidism. और उसके अलावा DDs में जी मैट्रिक्स कैसा लग रहा है आपको बोन का? मैट्रिक्स तो ग्राउंड ग्लास से ज़्यादा ट्रेबिकुलेटेड लग रहा है, और स्क्लेरोटिक लिटिक एरियाज नजर आ रही हैं और एक्सपैंडेड भी है. आपका टाइम खत्म हो गया. ओके, तो ये हाइपर पैराथायरॉइडिज्म और मल्टीपल माइलोमा और यही मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं. थैंक यू मैडम. अभी हम फिर से देखते हैं चैट में आप लोग जो हो ना वो मैसेज करोगे और फिर हम इसको डिस्कस करते जाएंगे. फर्स्ट क्या है? मैसेज करें चैट में. Yes, fibroma, Nora lesion, GCT of the tendon sheath, synovial cyst, hyperparathyroidism. जी, तो ये GCT of the tendon sheath था और कैंडिडेट 2 जो थे उन्होंने वो बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया. अच्छा, कैंडिडेट 2 आपको मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगी कि आपने कहा कि जो उनका है ना पामर एस्पेक्ट उस पे है, नहीं, ये डॉर्सल एस्पेक्ट के अलोंग ज्यादा जा रहा है. और चूंकि दिस इज अ केस ऑफ GCT ऑफ द टेंडन शीथ, तो हमने टेंडन्स पे लाजमी कमेंट करना है. ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो टेंडन है ना फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, उनके टेंडन्स को ये इनकेस भी कर रहा है, ठीक है, और वायलेट करके उनको ये आगे एक्सटेंड कर रहा है मेटाकार्पल्स के दरमियान में भी. ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू. बाकी आपने बहुत अच्छा बताया था. और जो फाइब्रोमा था वो उसके DDs में आएगा. ठीक हो गया. ओके मैम. ये आपने बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया. बस वो पामर वाला जो मसला था वो था, इसके अलावा वेरी गुड डिस्क्रिप्शन. ये इसमें आप बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो गए. ठीक है, अभी बताएं मुझे डायग्नोसिस इसका पहले चैट में, बाकी सब. पेजेट्स नहीं है ना, पेजेट्स में जनरलाइज्ड बोन्स जो होती हैं उसमें पोर्सन जो जाते हैं, ट्रेबिकुलर थिकनिंग आती है, पोर्सनिंग आती है, एक्सपेंशन आती है. इसमें जो भी एबनॉर्मेलिटी है दैट इज सेंटर्ड अलोंग द जॉइंट. और जब आपको जॉइंट इतना जूम इन करके दिखा दिया तो इसका मतलब है कि वो कोई आर्थराइटिस ही आपको दिखा रहा होगा ना. डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हुए, लेकिन बाद में थोड़ी सी हेल्प के साथ, थोड़े से हिंट्स के साथ वो वापस आ गए और उन्होंने पुअर स्टार्ट के बाद एंडिंग बहुत अच्छी कर दी. ठीक है, फिर ये एक्चुअली रोमाटाइड आर्थराइटिस का केस है. ठीक है, बिकॉज देखिए इसमें कितनी बड़ी बड़ी इरोजन्स नजर आ रही हैं. ठीक है, और फिर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मीडियल माइग्रेशन हो गई है फेमरल हेड की. एवियन क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लैटनिंग नहीं है ना, और ज्यादातर चेंजेस इसकी आ रही हैं एसिटेबुलर एस्पेक्ट ऑफ द हिप जॉइंट पे. एवियन में तो ज्यादा जो चेंजेस हैं वो सेंटर्ड होंगी फेमरल हेड पे, तो एवियन हम नहीं रखेंगे. ठीक है, ये कोई आर्थराइटिस है जो कि जॉइंट्स की दोनों साइड्स को इन्वॉल्व कर रहा है. इरोजन्स आ रही हैं बड़ी बड़ी सी, जॉइंट स्पेस काफी ज्यादा नैरो हो गई है, प्रोट्रूजियो एसिटेबुलाई हो गया है. तो फिर ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है विद कंकॉमिटेंट
ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि इसमें साथ ऑस्टियोफाइट्स भी थोड़े थोड़े बने हुए हैं और सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस आ रही है। ठीक है, तो पेजिट्स इसको नहीं कहेंगे, इसको एवीएन नहीं कहेंगे। पीवीएनएस थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उसमें इतनी ज्यादा ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग नहीं होगी, इतनी ज्यादा एस्टेबुलर एस्पेक्ट जो है हिप जॉइंट का उसमें इतने मसले नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर साहब ने बताया था, आप लोग भी चैट में डिस्कस कर लें, क्या है ये? Yes, this is osteoporosis. Okay. Just give me 1 minute. Okay. जी, अच्छा, इसकी एसोसिएशंस क्या थी डॉक्टर साहब? आपको नहीं मालूम थी, वो नहीं भी पता होती, लेकिन जब इस तरह का आसान केस आ जाए, स्पॉटर आ जाए, तो उसमें आपने एसोसिएशंस बतानी है। और तो एसोसिएशंस में इसके आता है मेलियोरोस्टोसिस, आता है ऑस्टियोपैथिया, क्या था, ऑस्टियोपैथिया स्ट्राइएटा और स्क्लेरोडर्मा। वो इसकी मोटी मोटी सी एक दो एसोसिएशंस याद कर लें। एंड यस, दिस इज डू नॉट टच लीजन, तो बायोप्सी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ओवरऑल आपका वाइवा अच्छा हो गया। ठीक है, वेरी गुड। Thank you, ma'am. कैंडिडेट कैंडिडेट को नंबर तो नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब आप आ जाइए। जी मैम। जी, आपने ये केस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया, वेरी नाइस, 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, इसका डायग्नोसिस जो है वो एवीएन ही है। ठीक है, और अगर फ्रैक्चर ना होता, वैसे ही एवीएन होता, तो फिर आपने बता दिया था कि प्रीसेट डिजीज हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसके जी मैम। अलावा आपने, मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खुद से कंक्लूड कर दिया। और वाइवा में यही चीज काम आती है कि आप एग्जामिनर का वेट नहीं करें कि वो बोले अच्छा नेक्स्ट क्या करोगे या ये क्या करोगे, आप खुद ही से घर तक छोड़ के आते हो केस को। सो वेरी वेल डन। ये आपने, ये भी स्पॉटर था। ठीक है, जब जल्दी से आपने बता दिया, नाम पे आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन नाम जो है वो भी इन द एंड आपने पकड़ ही लिया। ठीक है, अभी इसका डायग्नोसिस बताएं चैट में सारे। ऑस्टियाइटिस कंडेंसाइलाई। या ठीक है, अब ये इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। और ये इंशाल्लाह। जो होती है ना फीमेल यंगर पेशेंट्स, उनमें होता है। इटियोलॉजी इसकी ये है कि जो वेट बेयरिंग होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फिर जी। इसलिए फीमेल पेशेंट ज्यादा प्रोन होती हैं, और ये उसकी वजह से बन जाता है। ठीक है, राइट तो मैम। जब इस स्पॉटर केस आएगा, तो वो आपसे आगे पीछे के इस तरह के अजीब अजीब सवाल ही करेगा, लेकिन वेरी गुड। राइट मैम। नेक्स्ट जो है, इसको आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, मुझे लगा आप पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर आप नहीं पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी थी, फाइंडिंग्स आपने बहुत अच्छी पिक की। इसका मुझे आंसर बताएं चैट में बाकी सारे। ब्राउन ट्यूमर क्यों? ब्राउन ट्यूमर होगा तो उसमें बाकी बोन्स जो है उनमें कोई फाइंडिंग्स नहीं आएंगी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की, कोई सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन आएगी, कुछ और आएगा ना। टफ्ट रिजॉर्प्शन भी होगी, वो मैम एग्जाम में वो था, लेकिन मैं वो नहीं बोलना चाह रहा था। हाँ नहीं, एनकॉन्ड्रोमा नहीं ना। देखिए, मैं आपको भी ये कह रही थी, बाकी सारे कैंडिडेट्स को भी यही कह रही हूँ कि इन सबको आपने आपस में रिलेट करना है। अब टीबी डेक्टाइलाइटिस भी लोग कह रहे हैं, ठीक है, जीसीटी और एबीसी कह रहे हैं, नहीं ना, बाकी सारे हाथ को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? फिर मैंने आपको हिस्ट्री दी कि नहीं, उसके बाकी हाथ भी ना उसमें इसी तरह की फाइंडिंग है, इसका मतलब है कोई जनरलाइज्ड इशू चल रहा है। ठीक है, और यंग 15 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म नहीं हो सकता, बिकॉज बाकी मसले सिकल नहीं तो वो सिकल नहीं। सेल मैम। जी, सिकल सेल्स एनीमिया, बॉयल जस्ट गेस। यस, डिस्प्लेजियास के बारे में सोचेंगे ना, सिकल सेल की ऐसी मैनिफेस्टेशंस आपने नहीं देखी, लेकिन यस मैम। थैलेसीमिया में कॉर्टिकल थिनिंग आती है, इस तरह से एक्सपेंशन आती है, हीमोफिलिया में आती है। हीमोफिलिक सूडो ट्यूमर सुना है ना आप लोगों ने? जी मैम, लेकिन मैम मैं कंफ्यूज, मैं ये लीजन की शक्ल से हो गया था, ये मुझे हाँ मैलिग्नेंट लग रहा था बार बार। बिल्कुल, तो हीमोफिलिक जो सूडो ट्यूमर होता है, दैट इज अ मैलिग्नेंट लुकिंग लीजन। ठीक है, राइट। वो बोन को राइट। इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके अंदर इसका बड़ा प्यारा सा लफ्ज होता है कि मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया है,
के अंदर एक नेटवर्क बना होता है, ठीक है। वो बोन को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है कि बोन जो बिल्कुल अंदर से खाई हुई होती है, और एक जो है वो नेटवर्क सा बन जाता है उसके अंदर, और साथ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो Right, दैट इज द केस हीमोफिलिक hemophilic pseudotumor with hemophilic changes, hemophilic arthropathy. Okay, right, right, ma'am. Thank you. thank you. मैडम अब आप आ जाएं, आपने दिया था ना ये केस 7 जो है, ये जी आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, वेरी गुड। आप इसमें एनकॉन्ड्रोमा का डिफरेंशियल पहले दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडुलरी इन्फार्क्ट तक पहुंच गई, फिर आपने हिस्ट्री से कोरिलेट किया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी थी, लेकिन यू टुक सो मच टाइम, इतना टाइम नहीं लेना, ठीक है। हमने अपने जो मुश्किल केसेस हैं उनके लिए टाइम सेव करना होता है ना। तो अभी यकीन करें, डिस्क्रिप्शन जो है ना वो एग्जामिनर ज्यादा सुनते भी नहीं है गौर से, ठीक है। वो इधर उधर ध्यान हो जाता है, मतलब हम खुद भी अगर देखें, कोई हमें अपनी डिस्क्रिप्शन सुना रहा हो तो हम कहते हैं अच्छा हाँ क्या कह रहे थे। तो एग्जामिनर ने तो इतने सारे लोगों का वाइवा लेना है, तो वो डिस्क्रिप्शन के खिलाफ नहीं सुनेगा, ठीक है। तो बस आपने वो जल्दी से वाइंड अप करके ना डिस्क्रिप्शन, आपने डिफरेंशियल्स देने हैं, फिर खुद ही बताना है मैं क्या करूंगा, किस किस चीज से रूल आउट करूंगा। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आपने बहुत अच्छा बताया था। तो ये क्या है फिर, चैट वाले बताएं, सॉरी। medullary infarcts या दीज आर मिडलरी इन्फार्क्ट्स, ठीक है। और वही एमआरआई पे डबल लाइन साइन आएगा। अच्छा, मैंने इस दफा एमआर के केसेस रखे हैं एमएसके में ज्यादा, क्योंकि एक तो किसी ने कहा भी था, और दूसरी बात ये है कि एक्सरे पे हमें पता चल जाती हैं बहुत सारी चीजें, एमआर पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज एमएसकी का जो है एमआर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, उसमें सब चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी लगी होती हैं। तो इसलिए एमसीपीएस वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि एमआर क्यों इतना रखा है, लेकिन इसकी ये वजह थी ताकि हमारी आई बने। केसेस वही होते हैं, मोडेलिटीज चेंज होती हैं, तो बस हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाते हैं। अच्छा, ये केस आप बता रही थी, फिर मैंने आपको एंड पे हिंट भी दिया, मैंने कहा कि नहीं है कोई ड्रेन, लेकिन आप कॉन्फिडेंट थी अपने उसके डायग्नोसिस के बारे में, इसलिए आपने कहा कि नहीं जी नहीं, ये तो वही है। इसको कोई और चैट में आंसर करना चाहे तो बताएं प्लीज। तो दिस इज अ malignant looking lesion with a wide zone of transition, ठीक है। और फिर जब मैंने okay आपको हिंट दिया कि स्क्लेरोसिस आ रहा है ना, T2 पे डार्क एरिया रेड स्क्लेरोसिस, ठीक है। फिर हेट्रोजीनियस पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट दे रही है, ठीक है। पेरियोस्टल रिएक्शन आ रहा है, hmm. चीजें जो है वो, और फिर मैंने बताया कि 15 इयर्स ओल्ड बॉय है, फीवर की हिस्ट्री okay नहीं है, तो फिर हम मिलिग्नेंट की तरफ सोचेंगे। आपने बोला इविंग सार्कोमा, उसमें वो यही है कि उसमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट होता है ना, वो कभी भी इतना, ये तो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है ना, हल्का सा साथ चेंजेस जा रही हैं, उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट होगा, तो हम ऑस्टियोसार्कोमा रखेंगे ड्यू टू स्क्लेरोसिस, ठीक है। इसीलिए हर जो है ना सीक्वेंस वो मैटर okay करता है, इसमें आपको छोटी छोटी चीजों को देखना होता है। बाकी हाँ जी बिल्कुल, इसके डिफरेंशियल्स में हम रखेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस भी, लेकिन जब आपको एग्जामिनर ने कह दिया कि नहीं है इस तरह की कोई चीज, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको अपना दोस्त ही समझें और उस डायग्नोसिस से हट जाएं, ठीक है। और एक दफा आप थोड़ा सा सीट पे पीछे होके दोबारा से देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि नहीं यार वो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मोस्टली वो नहीं करते, वो आपको एक्चुअली ट्रैक पे ही लाना चाहते हैं। ओके, 9th केस फाइनल केस है, इसका डायग्नोसिस बता दीजिए। अच्छा, स्क्लेरोसिस कह रहे हैं, मार्क कर दें। अब आई डोंट नो मेरा इधर कर्सर कैसे नजर आता है। ना एक मिनट, हाँ कुछ हुआ है, एक मिनट। ये है स्क्लेरोसिस, ठीक है, दिस वन। T2 पे बाकी ट्यूमर जो है वो हाइपर इंटेंस है, लेकिन ये एरिया नहीं है, तो इसका मतलब ऑस्टियोसार्कोमा है, बिकॉज उसमें क्लाउड लाइक स्क्लेरोसिस के एरियाज होते हैं ना। और जी लास्ट जो केस है दैट इज फाइब्रस डिस्प्लेजिया जनरलाइज। आपने बोला भी मैडम कि ग्राउंड ग्लास मैट्रिक्स है, लेकिन उसके बाद आपने डिफरेंशियल्स कोई और दे दिए, ठीक है। और फिर ऊपर अगर आप देखें तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मंसूर अल्लाह रखा है 24 इयर्स ओल्ड मेल। तो 24 में हम एक्सपेंडेड बोन के साथ पेजेट की तरफ नहीं जाएंगे, हम 24 इयर्स ओल्ड में ग्राउंड ग्लास मैट्रिक्स देख के और एक्सपेंशन ऑफ द बोन्स देख के हम फाइब्रस डिस्प्लेजिया की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। दैट इज फाइब्रस डिस्प्लेजिया। इस पे फिर वो okay पूछेगा एसोसिएटेड क्या क्या होते हैं सिंड्रोम्स, बताएं, अब आप बताएं क्या क्या होती हैं इसकी एसोसिएशंस। पॉलीऑस्टोटिक है ना,
एक्यून अल्ब्राइट, ठीक है, और मेजुबार्ड। जी बिल्कुल, ठीक है। और ये क्रेनियो फेशियल फाइब्रस डिस्प्लेजिया है। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक, किसी ने मेंशन किया है कि हाँ, ये स्मॉल साइज पेरानिजल साइनसेस हैं, ठीक है। तो दैट इज द केस ऑफ क्रेनियो फेशियल फाइब्रस डिस्प्लेजिया। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम जीयूटी कर लेंगे, ठीक है। और कोई और सजेशन देना चाहते हैं इस मॉक सेशन को बेहतर करने के लिए तो बताइए प्लीज। हाँ मैडम, जो हीमोफिलिक सूडो ट्यूमर वाला केस था उसमें जो जनरलाइज्ड फाइंडिंग्स थी हीमोफिलिया की, जरा वो काइंडली बता दें। जी, हीमोफिलिक सूडोट्यूमर, ये देखिए ना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, कॉर्टिकल थिनिंग है, ठीक है, बोनी एक्सपेंशन है। तो ये सारी कोई फाइंडिंग्स हैं जो हमें नॉर्मली एनीमियाज में मिलती हैं, थैलेसीमिया में मिलती हैं, हीमोफिलिया में मिलती हैं, सिकल सेल में मिलती हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी, सही है। तो ये सारी फाइंडिंग्स उसकी वो हैं जो बता रही है कि कोई ब्लड डिस्क्रेजियास चल रहे थे। अब वो ब्लड डिस्क्रेजिया कौन सा चल रहा था उसको हमने इस ट्यूमर के साथ कोरिलेट करना था, ठीक है। राइट मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।